Okay, so one more thing that I would like to discuss here is, if you have done the practice and all, suppose C, C and C is there. This is a cyclic structure. Suppose C, 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 C is there. This is also a cyclic structure. In case of 4 carbon also cyclic structure can form. In case of 5 carbon also cyclic structure can form. Now these will be cyclic hydrocarbons. But what I would like to show here is the condensed form of the cyclic hydrocarbon. See, if I give 2H here, if I give 2H here, if I fill up with 2H, I hope you are understanding this. So the condensed form will be CH2, CH2, CH2. And calculate the bond. Carbon 1, 2, 2 hydrogen, 3, 4. Carbon 1, 2, 2 hydrogen, 3, 4. Carbon 1, 2, 2 hydrogen, 3, 4. Let's see this condensed structure of this. Suppose open structure is like this, H, H. If you fill up with H, then what will be the condensed structure? Condensed structure will be like this, CH2 bonded to CH2, 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 bonded to CH2. So in this way it will go. It is known as cyclopropane. Cyclopropane. It is known as cyclohexane. Cyclohexane. Why? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why hexane. All single bond. That's why N. And 1, 2, 3. So prop. Cyclic. So cyclo. All single bond. So prop A, N. In the same way, if you draw the condensed structure of this, it will be CH2. Here it will be H2, here will be H2, here will be H2. It will be cyclobutane. Draw the condensed structure of this by yourself and name it cyclopentane. Do it. Draw the condensed structure of this by yourself. So these are the condensed structure and the cyclic, the condensed structure of the cyclic compounds known as cyclohexane propane. Now, if there is a double bond or a triple bond, jot this down by pausing the video. Then see. If there is a double bond or a triple bond, suppose for example, this compound is very interesting. C, suppose for example, if I give double bond here, C, if I give single bond here, C, just the number of hydrogen atoms will change. It will become C double bonded to C, H2. Oh, sorry. Here 1 carbon, 1, 2, 3, 1 is left, so 1H. Here 1, 2, 3, 1 is left, so 1H. Here 1, 2, CH2. It will be like this. But if you draw it of 6 carbon, listen to this very carefully, and I will give double bond in multiple places. I have said that when you draw the straight chain, you don't give double bond to multiple places, but in this case you will give double bond to multiple cases. Here first you give double bond, then leave one, give single bond, then give again double bond, then leave one and give single bond, then give again double bond, then leave one and give single bond. Then it will be 1, 2, 3, CH4, 1, 2, 3, CH4, 1, 2, 3, another H4, 1, 2, 3, 1 with H4, H. This particular structure is known as benzene. See. Here I would like to discuss a simple thing. As you see the structure, see, I could have drawn this thing, C, 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 C. I would have given double bond in one place, and I would have given single bond in other places like I mentioned to do. Then it would be CH2, it would be CH, it would be CH, it would be CH2, it would be CH2, and it would be CH2. I would call it cyclohexene. But this is not cyclohexene. Here it is, you can say it is cyclohextriene. You can say like this because 3 double bonds are there, but it is popularly known as benzene. Now this particular compound is of very important significance. Why I will tell you.
It's because that all other, you see, one thing I will tell you, if you see methane, I can say that methane is the mother of all other, hydrocarbons. Why? Because if methane is there, 3H, removing one H from the methane, you introduce another, becomes ethane. Then again removing one H, you introduce other, it becomes propane, and in this way it goes. Again, if you introduce double bond, it becomes alkene. It introduces triple bond, it becomes alkyne. So methane is the mother. Such type of compounds are known as aliphatic compounds. Aliphatic compounds. Now aliphatic compounds are those kind of compounds which have straight chain, which have branch chain, like you have practiced all the compounds that are written in your copy by now are aliphatic compounds. Straight chain, branch chain, cyclic chains, all these that you have drawn are aliphatic compounds. But if methane is the mother of aliphatic compound, then benzene is the mother of aromatic compounds. Benzene is the mother of aromatic compounds. It is the mother of aromatic compounds. You see, not only benzene, there is anthracene, there is naphthalene, all these compounds. Why aromatic? Because it gives aroma. These compounds, this type of compounds give aroma. These are cyclic structure arising from benzene. How? Suppose from here one H हटा के तुमने दूसरा कुछ दे दिया, so that becomes an aromatic compound. You know, derivatives of benzene. These are derivatives of methane. Methane से सब आता है, ठीक है? अगर वो alkyne हो या फिर alkene हो, कोई भी हो, ठीक है? मीथेन से ही सब आता है. In the same way, ऐसे बहुत सारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जो हायर क्लासेस में सीखोगे, जिनमें स्मेल होता है और जो बेंजीन से आता है. तो बेंजीन इज द फर्स्ट और मदर ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो दैट्स व्हाई दिस knowing this compound is important. What you have just to know is this structure. I hope you have understood the structure. I hope you have understood the filling up of the bonds. One thing that I would like to say you is that you can also give the bonds in alternate places. The compound will remain same. Single bond CH, here you give double bond, again single bond CH, here you give double bond, again single bond CH in this way, and here again you give double bond. See, the position of double bond is altered. It was in the this and this position, and it is in the alternate positions. So this compound and this compound is same. Both are known as benzene. And as because these double bonds can be at any alternate positions, either it can take this structure or it can this structure. So the combination of these two structures are shown like this. Here it is, this point is one carbon, 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 and this point is one carbon. Carbon, 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 carbon. H is not shown here. Carbons are shown by dot, and the double bond which can be present in any alternate locations is shown by the circle. It is the structure of benzene. However, in higher classes you will learn about this structure. This is also known as a resonating structure. But all these things, resonance and everything, resonating structure, you will learn just for your knowledge. I told you this thing. Anyway, so this portion is done. Now, we have learned about quite a few aliphatic structure, aromatic cyclic structure. The cyclic structures which contain only single bond or the cyclic structure which contains only double bond at one or two positions, like the ones I have drawn, like the, if you have jotted down in copy, like the cyclohexene that I have drawn, these are also aliphatic compounds. Cyclic में एक दो double bond रहेगा वैसा नहीं. Particularly benzene का structure ऐसा ही रहता है. Anyway, तो straight chain, cyclic सभी double bond, triple bond सभी aliphatic है. So these things I hope you have understood. अगर हाइड्रोकार्बन को मैं सोचूं कि मैं डिवाइड करूंगा, तो मैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and unsaturated hydrocarbon. Now saturated hydrocarbons are only the alkanes.
and the unsaturated hydrocarbons are the alkenes and the alkynes. अब Q इसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है इन दोनों को, और Q इन दोनों को, इसमें साइक्लोएल्केन भी इंक्लूड होगा, साइक्लोएल्केन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इंक्लूड होगा, इसको भी सैचुरेटेड बोलेंगे। इसमें साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन भी इंक्लूड होगा। एक काम करो, इस पॉइंट में एक साइक्लोएल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर देख लो। जैसे सोचो मैं सी 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 4 दिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया, एक ही दूंगा, तो ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ये है साइक्लोब्यूटीन। और अगर आपको साइक्लो 1 2 3 4 5 1 2 3 दे दिया, एक ही जगह पे दूंगा स्ट्रेट चेन जैसा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसका भी 4 कंप्लीट। यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे H2 होगा, तो इसको मैं बोलूंगा साइक्लोब्यूटाइन। लेकिन ये सब बातें तभी अच्छे से समझ में आएगा जब तक आप लोग स्ट्रेट चेन का प्रैक्टिस कर चुके हो। एनीवे, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, एल्कीन, एल्काइन तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो। इन लोगों को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन लोगों को बोलते हैं साइक्लोएल्कीन। जैसे अगर ब्यूटेन का साइक्लो ड्रॉ करना चाहता है एल्केन, ऐसे दो बाकी है, 2 करके फिलअप कर दिया मैंने, तो ये अब स्ट्रेट चेन तो सब होगा ही। अब क्यों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहा जाता है, लेट्स डू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट बिट कि क्यों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड। मैं अगर सबसे सिंपलेस्ट फर्स्ट मेंबर को लूं एल्कीन का, फर्स्ट मेंबर है सी मिथीन, तो फर्स्ट मेंबर हो नहीं सकता, इथीन होगा। एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है, एल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, एल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन है, इथीन। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन है, इथाइन। ये पूछूंगा बाद में, होमवर्क, थिंक बाय योरसेल्फ। इसका फर्स्ट मेंबर मैं बोला हूं वीडियो में, एक जगह में है पीछे, अगर दिमाग लगाओगे तो मिलेगा। साइक्लोएल्केन का फर्स्ट मेंबर, इसका भी फर्स्ट मेंबर और इसका भी फर्स्ट मेंबर, दिमाग लगाओ, ढूंढने का कोशिश करो। ओके, एनीवे, तो क्यों ये इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन, क्योंकि एक कार्बन से शुरू होता है, इसमें एक कार्बन पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले दिखाया है। तो इथीन इज द फर्स्ट मेंबर। अब इसमें अगर आप डबल बॉन्ड डालोगे तो ये और ये वैकेंट है। अब सुनो, इस डबल बॉन्ड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, एक बॉन्ड का नाम होता है पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। अब सुनो, सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर and then pi bond. Sigma bond cannot be easily broken down. However, the pi bond or the other double bond can be easily broken down. मतलब अगर डबल बॉन्ड है, सीधा सोचेंगे तो अगर डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटने लायक है, तो एक बॉन्ड ऐसे टूट गया। अगर एक बॉन्ड टूट गया, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर था, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर था, दोनों शेयर करके थे। सोचो ये वाला पाई बॉन्ड है, ये टूट गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल जाएगा। मतलब टूट के एक नया बॉन्ड वेटिंग में रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, कोई एक आएगा, अभी इधर से बॉन्डिंग कर सकता है। अगर सोचो ऐसा ही था, डबल बॉन्ड था ऐसे, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था। अब क्या हो गया, अचानक से यहाँ का टूट गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, और एक टूट के यहाँ से एक वेटिंग बॉन्ड, यहाँ से एक वेटिंग बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे 2 H घुस गया। चीज देखो, इथीन था, बन गया इथेन। तो ये जो चीज है, ये अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊं ओपन बोर्ड में, ये अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे सोचो ये कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, या फिर खोल के ड्रॉ करो। जब खोल के ड्रॉ करोगे तो जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H घुस सकता है, या फिर आप क्लोरीन भी घुसा सकते हो, वैसा कोई बड़ा बात नहीं है।
ब्रोमीन भी घुसा सकते हो, ब्रोमीन तो घुसता ही है, ब्रोमीन भी अकेले कर सकेगा, घुस सकेगा, ब्रोमीन भी घुसा सकते हो। तो ये जो डबल बॉन्ड टूट गया तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल था, और बॉन्ड सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा है एक, और एक पाई है। पाई बॉन्ड टूट के दो नया सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें जगह था, बॉन्ड टूटने के बाद एक बॉन्ड टूटेबल था, बॉन्ड टूटने के बाद जगह था कि नया एलिमेंट घुस सके, सिंगल बॉन्ड करके ब्रोमीन घुसे, क्लोरीन घुसे, या फिर हाइड्रोजन घुसने का जगह था। तो इसीलिए ये है अनसैचुरेटेड। जैसे पानी में अगर आप शुगर डिसॉल्व करोगे तो शुगर को डिसॉल्व करने के बाद अगर और शुगर डिसॉल्व कर सकते हो तो उस पहले वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर पानी में आपने इतना शुगर डिसॉल्व किया है कि और शुगर उसके अंदर जाएगा ही नहीं तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन द सेम वे, क्योंकि यहाँ पे और हाइड्रोजन घुस सकता है इसीलिए इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे अगर आप ट्रिपल बॉन्ड बना लोगे तो ये क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2 बन गया CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH3, मतलब दो नया हाइड्रोजन घुसा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H4। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। तो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट सकता है, टूट के दो नए हाइड्रोजन कुछ और घुस सकता है, तो इसीलिए इसको अनसैचुरेटेड। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाले को देखोगे, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाले को देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दो बॉन्ड पाई बॉन्ड है। मतलब आपका सोचो रेड वाला सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दो ब्लू वाला पाई बॉन्ड है, तो दोनों टूट सकता है। ये टूट के नया एज ऐसे घुस सकता है, ये टूट के और एज घुस सकता है, और भी जगह है, और भी ज्यादा अनसैचुरेटेड है, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी अनसैचुरेटेड कहा जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इससे क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्डेड टू C HH, इससे अगर प्लस H2 कर दोगे या प्लस 2H2 कर दोगे, प्लस 2H2 कर दोगे तो जगह है ये हाइड्रोजन का घुसने का। मतलब ये टूट के ये जैसे पहले था, इसको अगर यहां देखोगे तो ये जैसे पहले था ट्रिपल बॉन्ड करके ऐसा नहीं होगा, ये बॉन्ड टूट के यहां से एक निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट के, एक बॉन्ड टूटने से हमेशा याद रखना दो कार्बन से एक एक निकलेगा। जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड टूटने के लिए दो निकलेगा। तो दो बॉन्ड टूटा है तो नीचे दो ऊपर दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन घुसा दिया, तो ये क्या बन गया, ये भी CH3 बॉन्डेड टू CH3 बन गया। तो ये आपका क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन घुसने का जगह है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड दिस इज द रीजन व्हाई you take alkane, that is ethane, it is not unsaturated hydrocarbon, और हाइड्रोजन घुसने का जगह ही नहीं है। तुम अगर CH3 बॉन्डेड टू CH3 से और हाइड्रोजन घुसाने का उम्मीद करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि और जगह ही नहीं है, इसीलिए सैचुरेटेड। शुगर वाला सॉल्यूशन सोचो बिल्कुल वैसा। So I hope you understood why it is called the unsaturated hydrocarbon, why it is called the unsaturated hydrocarbon, which are unsaturated hydrocarbon and which are the saturated hydrocarbon. I hope you have understood this question. And I hope you have paused the video and I have already jotted it down. अब जो सीखना पड़ेगा वो है होमोलॉगस सीरीज। लेकिन होमोलॉगस सीरीज सीखने से पहले, बिफोर लर्निंग अबाउट होमोलॉगस सीरीज, मैं यहाँ पे बहुत कुछ करूंगा। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो अच्छा बात है, यहाँ पे भी देखने से अच्छे से समझ जाओगे। होमोलॉगस सीरीज जब समझाऊंगा, तीनों होमोलॉगस सीरीज तीनों का पहले कुछ बोलूंगा, एल्केन, फिर उसके बाद एल्कीन और एल्काइन बोलूंगा। लेकिन होमोलॉगस सीरीज में जाने से पहले, अच्छा चलो पहले होमोलॉगस सीरीज सीख लेते हैं। इधर देखो, अगर मैं एल्केन में मीथेन बोलूं पहला वाला, तो इसका है CH4। अभी मैं डायरेक्ट कॉन्वेंस ड्रॉ करूंगा सबका, और मॉलिक्यूलर ओपन मुझे ड्रॉ करना ही नहीं है। दूसरा वाला कौन है, इथेन। इथेन में दो कार्बन है तो CH3 बॉन्डेड टू CH3 सिंगल बॉन्ड, सब में कैलकुलेट कर लो, सिंगल बॉन्ड है। प्रोपेन CH3 bonded to CH2 bonded to CH3. Butane CH3 bonded to CH2 bonded to CH2 bonded to CH3. Pentane
CH3 bonded to CH2 bonded to CH2 bonded to CH2 bonded to CH3। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो यहीं पे पॉज करो और इनका सब ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अगर उतना आता है तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और मिला के देखो, सब मिल रहा है। कॉपी से ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ इसको मैच करो यहाँ पे पॉज करके। एनीवे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हो गया। अब आएगा हेक्सेन। हेक्सेन का देखोगे तो CH3 6 कार्बन है, CH2 बॉन्डेड टू CH2 बॉन्डेड टू CH2 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखो जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ता जा रहा है, लेंथ ऑफ द चेन एक एक करके बढ़ रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, बीच में एक CH2 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो बीच में कोई भी CH2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो साइड में तो CH3 है। ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को होमोलॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसे समझ में आता है, ये इसका होमोलॉग है, ये इसका होमोलॉग है, ये इसका होमोलॉग है। ब्यूटेन प्रोपेन का होमोलॉग है, प्रोपेन इथेन का नेक्स्ट होमोलॉग है, ब्यूटेन प्रोपेन का नेक्स्ट होमोलॉग है और प्रोपेन ब्यूटेन का प्रीवियस होमोलॉग है। और ऐसे करके अगर आप नेक्स्ट होमोलॉग तक जाते जाओगे तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, पहला वाला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CH4 ही होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H10, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H40। हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 × 1 + 2 मतलब 4 होगा। तो देखो 1 कार्बन 4, अगर कार्बन 2 है तो 2 2 जब 4 + 2 6, ये देखो 2H3 3 है तो C3 2 3 जा 6 + 2 8 C3H8, 4 है तो C4 2 4 जा 8 + 2 10 C4H10 C5H12 C4 C6H14। इन दिस वे इट विल गो। एक चीज देखो, जैसे तुम होमोलॉग्स में जा रहे हो, इन होमोलॉगस सीरीज क्या हो रहा है, इन होमोलॉगस सीरीज देखो, नेक्स्ट होमोलॉग डिफर्स बाय CH2, रिमेंबर दिस, नेक्स्ट होमोलॉग डिफर्स बाय CH2 and also the next homolog differs by 14 unit of molecular mass। molecular mass क्यों 14 यूनिट molecular mass बोल रहा हूं, क्योंकि एक अगर हर एक होमोलॉग नीचे वाले से सिर्फ इतना डिफरेंस रख रहा है चेन में, तो कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 + 14। तो इसका जितना भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका 14 ज्यादा है, इससे इसका 14 ज्यादा है, इससे इसका 28 ज्यादा है, इससे इसका 14 ज्यादा है और इससे इसका 42 ज्यादा है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। सो इन दिस वे यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो ये हो गया आपका एल्केन का होमोलॉगस सीरीज। अब चलते हैं एल्कीन में। जैसे कि आपको पता है कि एल्कीन में हमेशा हम एक ही कार्बन डालेंगे बीच में, तो मुझे एक ही कार्बन डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और सॉरी, एक ही डबल बॉन्ड डालेंगे, सॉरी नॉट एक ही कार्बन, एक ही कार्बन क्यों होगा, एक ही कार्बन नहीं, एक ही डबल बॉन्ड डालना है। और शुरू हमेशा, अगर ये एल्कीन का है तो शुरू हमेशा सोचो इथीन है तो CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C2H4। अगर प्रोपीन है, इसका ओपन चेन फॉर्म आई होप यू हैव प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो इसका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड टू CH2। अगर इसको करना और समझना मुश्किल हो रहा है तो मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1, यहाँ पे 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन से फिल अप कर दो, ये हो गया आपका प्रोपीन, एक ही जगह में देना है। तो इसी वजह से मैं पहले भी सिखाया हूं कि जहां पे डबल बॉन्ड देना है जो होना चाहिए उससे एक हाइड्रोजन कम। जैसे ये डायरेक्ट यहाँ पे मुझे अगर ब्यूटीन ड्रॉ करना है विदाउट एनी हेल्प ऑफ ओपन स्ट्रक्चर, तो मैं क्या ट्रिक इस्तेमाल करूंगा, पहले मैं ब्यूटेन ड्रॉ कर लूंगा, CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया ब्यूटेन ड्रॉ। अब मैं क्या करूंगा, जहां पे डबल बॉन्ड जाना है
यहाँ पे डबल बॉन्ड जाना है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बढ़ेगा तो एक हाइड्रोजन घटा दो, यहाँ पे एक बॉन्ड बढ़ेगा तो एक हाइड्रोजन हटा दो, हो गया। अगर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं डाल के आपको यहाँ पे डालना है तो डालो, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालो, जो नॉर्मल से है वहां से एक हट जाएगा, यहाँ से एक हट जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड, क्योंकि अब देखो ना क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड टू CH2, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इमेजिन करो ऐसे 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 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन में और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो अगर यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड लाना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, नहीं होगा, तो मुझे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। मतलब जैसे मैंने सीखा था ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में उल्टा हो रहा है। सैचुरेटेड में क्या सीखा था, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये खुल जाएगा, नया नया H घुस जाएगा, और यहाँ पे उल्टा है, H को हटाओ डबल बॉन्ड डालो। सो ये हो गया आपका ट्रिक। तो कैसा है, अगर मैं पहले ब्यूटेन ड्रॉ करूं, CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ से अगर H हटा दोगे और यहाँ से अगर H हटा दोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड घुस जाएगा। ये हो गया आपका ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे, अब प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका हो जाएगा C3H6 ये 3 4 5 8 C4H8। तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर मैं ब्यूटीन में जाऊं, अगर मैं पेंटीन में जाऊं तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, CH3 CH2 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 CH3, ये मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हो गया। डबल बॉन्ड डालना है मुझे, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है इस बार, तो यहाँ से एक H हटाओ, इसको CH2 बनाओ, इसको CH बनाओ, डबल बॉन्ड डालो, हो गया कंप्लीट। तो इसका C 1 2 3 4 5 और 10 होगा, 1 3 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 8 2 10, तो ये हो गया C5H10। तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है, एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जनरल फार्मूला, इस चीज का जनरल फार्मूला है CnH2n। अगर आप और आगे बढ़ोगे और एल्काइन का होमोलॉगस सीरीज देखोगे, सपोज फॉर एग्जांपल आप एल्काइन का होमोलॉगस सीरीज देख रहे हो, तो कैसे करना है, देखो एल्काइन में क्या हो रहा है, एल्काइन में इथाइन, तो CH ट्रिपल बॉन्डेड टू CH, प्रोपाइन C ट्रिपल बॉन्ड डालो, H3 सिंगल बॉन्ड हो गया, ये H हो गया, ब्यूटाइन C डालो, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड डालना है डालो, H, तो यहाँ पे एक ही होगा कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, इसका एक कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे 2 H हो जाएगा, तो CH2 और यहाँ पे CH3। अगर आप इसका देखोगे तो ये है C2H2, ये है C3H4 और ये है C1 2 3 4 C4 3 2 5 1 6 C4H6। तो इसका जो फार्मूला है, इसका जो जनरल फार्मूला है एल्काइन का जनरल फार्मूला मिला के देखो CnH2n-2, जैसे मैंने एल्केन का मिला के दिखा था वैसे एल्काइन का इसका मिला के देखो। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज में देखोगे तो इसमें भी हर एक का डिफरेंस CH2 करके ही है। देखो तुम यहाँ पे उतना वैसे स्ट्रेट चेंज जैसा नहीं दिखेगा, ये देखो 1 2 3 4, ये एक, ये देखो ये एक, तो एक CH2 एक्स्ट्रा है सब में, C2H4 C3H6 CH2 एक्स्ट्रा है,
CH2 करके एक्स्ट्रा है, तो वो जो अपन ने बोला था CH2 करके बढ़ेगा, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, एल्केन के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। 40 यूनिट्स डिफरेंस रहेगा और हर एक नीचे जाएगा जब होमोलोगस सीरीज में, तब CH2 करके जाएगा। तो एल्केन का ये होमोलोगस सीरीज, एल्कीन का और एल्केन का होमोलोगस सीरीज। और उसका जनरल फॉर्मूला भी मैं सीख गया। तो जनरल फॉर्मूला सीखने से क्या फायदा होता है, डायरेक्ट ये सब बिना ड्रॉ करके हम लोग लिख सकते हैं। इसको जॉट डाउन करना है इससे पहले, तो वीडियो में बैक जाके जॉट डाउन करो ताकि जब पॉज करो तो मेरा अभी ये नहीं है। एनीवे, अच्छा मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, एल्केन का CnH2n+2 है, एल्कीन का CnH2n है और एल्काइन का CnH2n-2 है। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखो। और अगर कोई आपको डायरेक्ट बोल दे ये डेकाइन का फॉर्मूला बता दो, तो आप डायरेक्ट यहां से 10 बैठाओ डेकाइन, क्योंकि आइन है तो ये वाला यूज करो 10, तो 2 10 जा 20 - 2 18, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C10H18। अब आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक काम करो, आपने पहले जो डेकाइन ड्रॉ किया था या फिर डेकाइन शायद नॉट ड्रॉ किया था, आप एक काम करो 10 कार्बन ड्रॉ करो, सिंगल सिंगल बॉन्ड दो, एक जगह में ट्रिपल बॉन्ड दो और 8 से फिल अप कर दो, सब वैकेंट स्पेसेस ठीक से करोगे तो C10H18 ही आएगा। ये करके देखो, ये करके देखो, मजा आएगा। उसी तरह डेकेन एल्कीन एल्काइन भी करके देखो, जो तुम्हारा ये आएगा। यहाँ पे डेकाइन होना, डेकीन जो है, ये मैं अगर मिटा दूं, डेकीन जो है, डेकीन हो जाएगा C10H20 और डेकेन जो है ये बन जाएगा C10H22। अब ये करके देखो, मिला के देखो, सबके लिए मिलेगा। मीथेन से स्टार्ट करके सब में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन टू डेकेन, इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, डेकिन, डेकाइन, हेक्सिन, हेक्साइन, सबके लिए मिलेगा, सबके लिए सेम। ये यूनिवर्सल फार्मूला है इनका उसके लिए। So this is about the molecular formula and homologous series. I hope you have understood.